Hello everyone and welcome to Mentor's Galaxy. I am Pratiksha Roy, your chemistry mentor. We have already started our chapter series in Mentor's Galaxy, जहाँ पे आपको full chapters मिलेंगे in YouTube completely free. So we have already started our chapter series for maths and chemistry. And for chemistry, I have started the first chapter of class 11, which is some basic concepts in chemistry. सो इन आवर फर्स्ट लेसन हमने मैटर और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था एंड टुडे इट इज टाइम फॉर द सेकंड लेसन ऑफ दिस चैप्टर which is based on significant figures and other topics. So let us begin today's lesson, which is lesson 2 of some basic concepts in chemistry. So let us see the topics that we are going to discuss in today's chapter. पहले हम देखेंगे uncertainty in measurement के बारे में. What is uncertainty and how do we express the uncertainty in our answer? Concept of precision and accuracy. What is the meaning of precise and what is the meaning of accurate? Then we will learn about scientific notation. कि ये क्या होता है, इसका use क्या है? And obviously we will learn about significant figures, which is very important. And lastly, we will discuss in brief about dimensional analysis. You may think that this is a very simple topic and very easy to understand, and maybe you won't get a lot of questions from these topics in your competitive exams. लेकिन इसका इम्पोर्टेंस जो है कि आपका कोई भी और क्वेश्चन आप ले लीजिए, उसको आप सॉल्व करेंगे यूजिंग योर फॉर्मूलाज, लेकिन लास्ट में आपके क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि एक्सप्रेस योर आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. So if you do not know what significant figure means or how to find out the significant figures, आप उस लास्ट स्टेप में अटक जाओगे. इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जानना या फिर साइंटिफिक नोटेशन के बारे में जानना, how to express them, how to write them, it is very important for all questions. आप मैथ्स के भी क्वेश्चंस ले सकते हैं, केमिस्ट्री के किसी और चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस ले सकते हैं. In some questions, it is written to express your answer in certain significant figures. So the concept of significant figures is hence very important. So in today's lesson, we will learn about significant figures and more. So let us begin. So the first thing that we have to know is what is uncertainty in measurement. Measurement में जो uncertainty होती है, वो क्यों होती है और ये क्या होती है? So let us see the definition first. It refers to the estimated range of values within which the true value of a measurement is likely to lie. मतलब ये एक रेंज है, ये कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, ये एक रेंज है. फॉर एग्जाम्पल 0.5 may be a value. So you can say that this number lies in the range of 0 to 1. ऑब्वियसली 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं. अगर आप डेसिमल नंबर्स लो 0.1, 0.2 या फिर 0.01, 0.02. सो दिस इज अ नंबर जिसका रेंज आप ले सकते हो 0 to 1, मतलब 0 to 1 के बीच में ये नंबर होगा. तो ये जो अनसर्टेनिटी है ये एक रेंज है कि जब आप आपके आंसर के बारे में सर्टेन नहीं है कि ये 0.5 ही होगा, तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर शायद 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है. So this is a range of values within which the true value is likely to lie. मतलब आपका जो true value है या फिर आपके एक्सपेरिमेंट का जो एक्चुअल आंसर है वो इस रेंज में आप लाई करेगा. In competitive exams also you see in numerical type questions जहाँ जो MCQs नहीं होते वहां पे ऑलवेज आंसर का एक रेंज दिया होता है, स्पेशली फॉर डेसिमल रिलेटेड आंसर्स, कि किसी ने राउंड ऑफ किया ठीक से, किसी ने ठीक से राउंड ऑफ नहीं किया, बट उन्होंने सॉल्व ठीक से किया, so they should obviously get the marks, and for that the range is given क्योंकि वो खुद भी अनसर्टेन है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा. So this is the uncertainty in measurement. It is a part of all measurements which may arise from limitations in the measuring instrument and the skill of the experimenter. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अनसर्टिनिटी को हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं
और स्किल ऑफ एक्सपेरिमेंटर को हम रैंडम एरर कहते हैं। सो व्हाई शुड वी बी अनसर्टेन, कि मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी होनी ही क्यों है? एक आपका हो सकता है कि आप जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हो उसमें कोई फॉल्ट है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट जब बना था उसमें तब कुछ गलतियां थी, इसलिए वो हमेशा, आप जितना भी अच्छा एक्सपेरिमेंट करो हमेशा वो गलती कुछ ना कुछ होती है। सो दैट इज अ सिस्टमैटिक एरर, मतलब वो एक सिस्टम फॉलो करता है। ऐसा हो सकता है कि उसका रेंज 2 यूनिट्स कम है, 2 यूनिट्स ज्यादा है, सो इट्स अ सिस्टमैटिक एरर। एंड द स्किल ऑफ द एक्सपेरिमेंटर, कि आपने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मे बी योर फ्रेंड वाज नॉट दैट गुड, तो ये आपके स्किल के ऊपर बेस्ड है, इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सो इट्स अ रैंडम एरर, इसका कोई सिस्टम नहीं है। मे बी ऑन मंडे यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, यू वर इन अ गुड डे, आपका दिन बहुत अच्छा था, एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से हुआ, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। बट द सेम एक्सपेरिमेंट इफ यू कैरी आउट प्रोबेबली ऑन अ वेडनेसडे और एनी अदर डे, जब आपका दिन खराब जा रहा हो रहा है एंड योर रिजल्ट इज रॉन्ग, सो दिस इज अ रैंडम एरर, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। सो इन सारी चीजों की वजह से एक मेजरमेंट में हमको अनसर्टनिटी मिल जाती है। The data must be presented realistically with certainty of the highest possible extent. मतलब हमारा जो डेटा है, हम जब कोई आंसर लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया 1, दिस इज एन आंसर, एंड देन वी आर राइटिंग 1.02, दिस इज ऑल्सो एन आंसर। अनदर आंसर कैन बी 1.023। सो आप देख सकते हैं कि इन तीन वैल्यूज में 1 जो हमारा है कॉमन है। सो इसके बारे में हम सर्टेन है कि आंसर 1 के रेंज में ही कहीं आएगा। 1.02 भी हो सकता है, 1.023 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमको पता है, हमको समझ में आ रहा है कि 1 के रेंज में ही होगा। तो जितना ज्यादा आप डेसिमल पॉइंट्स पुट करेंगे उतना ज्यादा आपको अनसर्टेन और सर्टेन पार्ट में डिफरेंस समझ में आएगा। सो हमको ऐसे हमारे डेटा को प्रेजेंट करना है, ऐसे हमारे आंसर को लिखना है ताकि वो सबसे ज्यादा सर्टेन हो, हाईएस्ट पॉसिबल एक्सटेंट तक वो सर्टेन हो। तो यही है हमारा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अंडरस्टैंड इट बेटर, लेट अस सी एन एग्जांपल। आप लोगों ने टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सुना होगा या फिर आपने लैब में किया भी होगा। सो मे बी यू आर डूइंग अ टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट, whose actual answer is probably 25। 25 ml जब ब्यूरेट में होगा, यही है इसका एक्चुअल आंसर। तो आपको 3 बार टाइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है, टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, या फिर टू चेक वेदर योर एक्सपेरिमेंट्स आर गेटिंग रिपीटेड प्रॉपरली। तो पहला आपका वैल्यू आया 25.0, नेक्स्ट वैल्यू यू गॉट 25.2, एंड द थर्ड वैल्यू यू गॉट 25.1। करेक्ट आंसर आपका 25 ही है। अगर आप एकदम सही से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपके तीनों आंसर्स 25 ही आने चाहिए थे, लेकिन आपको यहाँ पे 25.0, 25.2, 25.1 मिल गए हैं। तो ये है हमारे रैंडम एरर्स। मतलब पता नहीं कुछ हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट आपने बहुत अच्छे से किया, इस एक्सपेरिमेंट में शायद आप अपने दोस्तों से बात कर रहे थे या फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, किसी को आपने देख लिया, इसलिए ऐसा हो रहा है, गड़बड़ हो गया, दिस इज अ रैंडम एरर। लेकिन इन सारे डेटा से आपको ये पता जरूर चल रहा है कि हमारा जो एक्चुअल आंसर है वो 25 के रेंज में ही आना चाहिए, कि वो 25.0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इसका एवरेज ले वो भी हो सकता है, लेकिन 25 से शायद 25.3 के रेंज में आपका कहीं आंसर हो सकता है। आपको इतना समझ में आ रहा है। सो 25 जो है आपका, इसके बारे में आप सर्टेन हो, सो दिस इज द सर्टेन पार्ट। और ये जो 0.0, 0.2, 0.1 ये सब है, ये सारे हैं आपके अनसर्टेन पार्ट। आपको पता नहीं है कि 0.0 है या फिर 0.1 है या फिर 0.2 है, आपको पता नहीं है, लेकिन 25 के रेंज में ये आपको समझ में आ रहा है कि 3 बार एक्सपेरिमेंट हमने किया है, 3 बार हमको 25 ही मिला है।
So 25 will be your certain part and these points will be your uncertain part. तो ऐसे हम डेसिमल को यूज करके हम सर्टेन और अनसर्टेन पार्ट को मिक्स करके हमारे आंसर को हम प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आप तुक्का भी लगा सकते हो कि नहीं 25 के साथ ही मुझे जाना है, मैं 25 को ही सिलेक्ट करता हूँ एज द राइट आंसर। या फिर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं एवरेज ले लेता हूँ, इसका जो एवरेज आएगा वो मैं आंसर लिख के चलाऊंगा। सो दिस डिपेंड्स ऑन यू, बट 25 जो है आपका रेंज वो आपका सही है। सो दिस इज द सर्टेन पार्ट। सो दिस इज अबाउट द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब देखते हैं कि प्रिसीशन क्या है और एक्यूरेसी क्या है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। प्रिसीशन इज द क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स टू ईच अदर फॉर द सेम क्वांटिटी। मतलब आप जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, 3 बार आपने सेम एक्सपेरिमेंट्स किए, आपको 3 अलग वैल्यूज मिले हैं। वो 3 अलग वैल्यूज एक दूसरे के जितने पास होंगे उतना आपका प्रेसिशन ज्यादा होगा। For example, two measurement values of 4.92 and 4.94 are precise in nature. कि हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए, एक का वैल्यू हमको 4.92 आया, का 4.94 आया। सो 4.9 इज योर सर्टेन पार्ट कि 4.9 के रेंज में ही आ रहा है, 4.9 यहाँ भी है। ये जो 0.02 है यहाँ पे, 0.04 है यहाँ पे, इनमें डिफरेंस कितना है? 0.02 का ही डिफरेंस है, जो कि बहुत कम है। मतलब ये जो दोनों वैल्यूज है एक दूसरे के बहुत क्लोज वैल्यूज है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज प्रेसाइज है। आपका जो एक्सपेरिमेंट आप किए हो, आपके रिजल्ट में प्रेसिशन है कि आप जितनी बार एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हो आपको बहुत नियर बाई आंसर्स मिल रहे हैं, मतलब आप प्रेसाइसली एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो फिर ये हो गया प्रेसिशन। और एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू और द एक्सेप्टेड वैल्यू। एक्यूरेसी क्या है कि आपका जो एक्चुअल आपका आंसर जो आना चाहिए, आप उसके जितना करीब जाओगे उस आंसर के, उतना आपका आंसर होगा एक्यूरेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ट्रू वैल्यू इज 5, देन द मेजरमेंट 4.99 एंड 5.01 कैन बी एक्यूरेट। कि करेक्ट आंसर हमको पता है कि 5 होना चाहिए। हमने जब एक्सपेरिमेंट्स किए हमको 4.99 आया, एक बार हमको 5.01 आया, जो कि 0.01 का डिफरेंस रखता है फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, मतलब बहुत ही पास है, तो इसलिए बहुत एक्यूरेट है। ऐसा भी हो सकता है कि 5 होना चाहिए करेक्ट आंसर और आपका आंसर आ रहा है 4.2, 4.1, 4.0 आंसर्स आपको आ रहे हैं। तो ये जो नंबर्स है ये अपने में काफी प्रेसाइज है, क्योंकि एक दूसरे के बहुत करीब है ये, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ये 5 से बहुत ही कम है, 5 से वो 1 कम है। सो ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन ये प्रेसाइज है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी। तो फिर से हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने नहीं, 3 स्टूडेंट्स ए बी सी, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये आप हो, ये आपका दोस्त है और ये आपका दूसरा दोस्त है। आप तीनों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। इस एक्सपेरिमेंट का जो करेक्ट वैल्यू, मान लीजिए कि आप टाइट्रेशन ही कर रहे हो, मान लीजिए कि हम एक टाइट्रेशन का ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इसका जो ट्रू वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए 25 ml। तो हम 3 बार करेंगे टाइट्रेशन। ए जो है, ए का वैल्यू आया है कितना? 25। ए मतलब आप हो, 25.0, 25.0, 25.1, ये हो गए ए के वैल्यूज। अब बी जो है, बी के वैल्यूज आ रहे हैं 24.5, 24.6 एंड 24.7 हो गए। और जो सी के वैल्यूज आ रहे हैं वो है 25.0, 25.0, 24.9 एंड मे बी 25.2। तो आप और आपके दोस्तों ने एक्सपेरिमेंट कर लिया, बहुत अच्छी बात है।
अब देखिए आपने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो प्रेसाइज है, पहली बात तो प्रेसाइज है। क्यों? क्योंकि एक दूसरा दूसरे के बीच में जो क्लोजनेस है आपके वैल्यूज में, दोनों आपको सेम वैल्यूज मिले हैं 25 और एक आपको मिला है 25.1, 0.1 ज्यादा है, मतलब एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज है ये वैल्यूज। तो आपका आंसर जो है, आपके आंसर प्रेसाइज है। और सिर्फ प्रेसाइज नहीं, आपका आंसर एक्यूरेट भी है। क्यों? क्योंकि आपका जो रियल वैल्यू 25 ml आना चाहिए था, आपको वही मिला है 2 बार, और एक बार आपको 25.1 मिला है। मतलब आपके जो आंसर्स है वो रियल वैल्यू के बहुत क्लोज है। आपका जो एक्सपेरिमेंट है आपने बहुत प्रेसाइसली किया है, बहुत एक्यूरेटली भी किया है। बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अब आपके दोस्त को देखते हैं, बी को मिला है 24.5, 24.6, 24.7। प्रेसाइज तो है आपका दोस्त, प्रेसाइज तो है, लेकिन क्या वो एक्यूरेट है? कि भाई वो तो एक्यूरेट है ही नहीं, काफी उसका कम है, 0.5 उसका कम जा रहा है एक्चुअल वैल्यू से, एक्यूरेट नहीं है। कि उसने किया बहुत अच्छे से, प्रेसाइसली किया है, उसके सेम सेम वैल्यूज आए, पास पास वैल्यूज आए, लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल आंसर आना चाहिए था उससे वो काफी दूर है। आपका जो बी वाला दोस्त है वो प्रेसाइज तो है, लेकिन एक्यूरेट वो नहीं है। तो आपके दूसरे दोस्त को देखते हैं, सी भाई साहब को। तो उसको क्या वैल्यूज मिले? 25, 24.9, 25 अब ये जो एक दूसरे के साथ ये वैल्यूज ना काफी काफी डिफरेंट है, काफी इसमें गैप है। तो ये कुछ खास प्रेसाइज नहीं है। एक बार उसको 25 24 में आया, एक बार 25 में आया आंसर। ये प्रेसाइज ज्यादा नहीं है, लेकिन एक्यूरेट है, क्योंकि इसके सारे जो वैल्यूज हैं वो एक्चुअल वैल्यू से काफी मिलते जुलते हैं। कि 25 एक बार उसको 25 भी मिला, देखो बहुत अच्छी बात है। एक बार 24.9 ही पास है 25 के, एक बार उसको मिला 25.2, जो कि ऑल्सो वेरी क्लोज टू 25। So these, from this simple titration experiment, you can understand the difference between precision and accurate. आप प्रेसाइज भी थे, एक्यूरेट भी थे। आपका दोस्त बी सिर्फ प्रेसाइज था और आपका दोस्त सी सिर्फ एक्यूरेट था। तो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे ज्यादा मार्क्स आपको ही मिलेंगे, क्योंकि आपने दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दिए। सो द मेन पॉइंट of all my stories of all this titration is to make you understand difference between precision and accuracy. So now we are done with precision and accuracy, and now we will move on to scientific notation. तो ये एक नई चीज है scientific notation. Maybe you know about it, maybe you do not. So let us learn about it. So scientific notation refers to a method of expressing very large or very small numbers in a simpler form. कि साइंटिफिक नोटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? कि बहुत लार्ज कोई नंबर है या फिर बहुत छोटा सा कोई नंबर है, उसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमको समझने में इजी हो। ये देखिए 5 के बाद कितने सारे जीरोस हैं, मुझे तो काउंट करने में ही बहुत दिमाग खराब हो रहा है। ये बहुत ही लार्ज नंबर है, और ये कितना छोटा नंबर है कि डेसिमल के बाद कितने सारे जीरो है, उसके बाद एक 5 है। बहुत छोटा सा नंबर है, बहुत स्मॉल नंबर है। उसको देख के ही आपको कि अरे इतने सारे जीरोस है, इतना सारा गिनना पड़ेगा हमको, या फिर यहाँ पे भी इतने सारे जीरोस है, इतना क्या हम काउंट करते रहेंगे? नहीं। इसको ही सिंपल फॉर्म में हमको समझाने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। It involves writing a number as the product of a coefficient, that is a number between 1 and 10 and a power of 10. मतलब यहाँ पे एक हम नंबर लेते हैं x, तो x क्या है? 1 और 10 के बीच में आता है जो, into 10 to the power n। जितने सारे जीरोस होंगे उतना ये n का पावर ज्यादा होगा, या फिर जितने कम जीरोस होंगे उतना नेगेटिव n का, वो n का जो कोइफिशिएंट है वो ज्यादा होगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल, एक नॉन एक्सपोनेंशियल टर्म रहता है, इसको आप इंटीजर कह सकते हो। एक इंटीजर रहता है इनटू एन एक्सपोनेंशियल टर्म। तो यही है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। बेसिकली दिस इज हाउ यू राइट इट। इट इज डन टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस फॉर क्वांटिटीज लाइक केमिकल कांस्टेंट्स एंड एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस, एक एटम का मास बहुत ही ज्यादा कम होता है, हम ऑलरेडी ये जानते हैं क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है मैंने।
अपने प्रीवियस लेसन्स में। सो ये जो मासेस है या फिर जो केमिकल कॉन्स्टेंट्स है वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। उसको सिंपल बना के लिखने के लिए ही साइंटिफिक नोटेशन का बहुत ज्यादा यूज है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, 9.1 मतलब 9 kg। वो आप इमेजिन कर सकते हो कि हाँ 9 kg इतना भारी होगा। 10⁻⁻31, तब जीरो के बाद से जीरो जीरो करके जब आप 31 जीरोस लिखेंगे उसके बाद आएगा आपका 9.1, जो कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि इतना छोटा नंबर है। तो उसको अगर हम ऐसे लिखने जाए तो ये पूरा ये जो स्लाइड है वो ही खत्म हो जाएगा। यहाँ से शुरू करते 31 अगर हम जीरोस लिखेंगे, तो इससे बेटर है कि हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज करके हम इसमें आराम से कितने सिंपल वे में एक्सप्रेस कर दिया। इसीलिए साइंटिफिक नोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइंटिफिक नोटेशन इज डिनोटेड एज x इज n इंटू 10⁻n, या फिर x इंटू 10⁻n, जैसे मैंने बताया, वेर n इज द न्यूमेरिकल कोइफिशिएंट और डिजिट टर्म, कि 1 to 10 के बीच में कोई नंबर होना चाहिए n, एंड 10⁻n इज द एक्सपोनेंशियल पार्ट। आपका अगर 5000 will be 5 into 10⁻3. So this is how you write a scientific notation. This is how you denote a scientific notation. Now let us understand a very simple yet a very important point. 2524.12 बहुत ही रैंडम सा नंबर है। अब हमको क्या मन हो रहा है कि हम इस डेसिमल को यहाँ पे लेके आए। डेसिमल को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें। तो हमें पता है कि लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने के लिए हमको हमेशा डिवाइड करना होता है। जितना प्लेस हमको शिफ्ट करना है उतने पावर ऑफ 10 से हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 1 2 3, सो वी विल गो 3 प्लेसेस, 2524.12 10⁻3, कि हमको 3 पीछे जाना है। तब इस 10⁻3 को कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पे भी 10⁻3 लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों कैंसिल होके ये नंबर ही है। तो मैंने बेसिकली इस नंबर को थोड़ा सजा के ऐसे हमने लिखा है यहाँ पे। तो अब हम इस पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। इस पार्ट को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको आएगा 2.52412 इंटू 10⁻3। तो जब हम लेफ्ट साइड में डेसिमल को शिफ्ट करते हैं, व्हेन वी आर शिफ्टिंग द डेसिमल टू द लेफ्ट, we will always get a positive to the power of 10। मतलब जब हम लेफ्ट में जाएंगे, डेसिमल जो है हमारा, जब हम उसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो वहां पे जो होगा 10⁻n को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जहां n ये जो है पॉजिटिव है। तो लेफ्ट में जाएंगे तो पॉजिटिव। फिर से हम इस नंबर को ही लेते हैं 2524.12, फिर इसको यहाँ पे लेके जाना है। क्या करेंगे, 2524.12 इंटू 10⁻2, 1 स्पेस 2 स्पेस, 10⁻2 डिवाइडेड बाई ऑल्सो 10⁻2। मैंने फिर से इसको सजा के लिखा है कि दोनों को कैंसिल कर दे तो यही नंबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हम कैलकुलेट करेंगे। 25412 पॉइंट, यहाँ पे जीरो था आप मान सकते हो, तो 0.0 इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 10⁻²। ये जो नीचे 10⁻2 था, इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻²। मतलब जब डेसिमल को हम करते हैं शिफ्ट राइट में, तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻−n। n का क्या होगा वैल्यू, जितने स्पेसेस आप शिफ्ट करोगे n का वैल्यू उतना ही होगा, लेकिन ये होगा हमारा नेगेटिव। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने लायक,
क्योंकि आपको आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे कि एक्सप्रेस इट इन 1 डेसिमल प्लेस और 2 डेसिमल प्लेस, लेकिन आपका आंसर तो कुछ और ही आया है, आपको डेसिमल को शिफ्ट कराना है। तो कौन से साइड में शिफ्ट करेंगे और उसके साथ कैसा एक्सपोनेंशियल जुड़ेगा, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट कराएंगे तो 10 टू द पावर n आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप डेसिमल को राइट में शिफ्ट कराएंगे तो 10 टू द पावर -n आप मल्टीप्लाई करेंगे। और n की वैल्यू आपको पता होगी, जितना स्पेस आप शिफ्ट करोगे उतना होगा हमारा n का वैल्यू। और अगर आपको ये याद रखने में दिक्कत हो रही है, यू कैन यूज दिस स्टेप कि दोनों हम लिखेंगे, जहां पे हमको शिफ्ट कराना है वो ऑपरेशन हम करेंगे और दूसरे को लिख देंगे। इफ यू हैव रिमेंबर इफ यू हैव ट्रबल रिमेंबरिंग कि लेफ्ट में पॉजिटिव राइट में नेगेटिव, तो यू कैन डू इट इन दिस मैटर दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मिलेंगे जहां पे मेंशन्ड होगा कि आपको इतनी डेसिमल प्लेसेस में आपके आंसर को एक्सप्रेस करना है। तो डेसिमल प्लेस को आपको करेक्टली शिफ्ट करना जानना जरूरी है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So now we will see addition and subtraction of scientific notation. कि हम जान चुके हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है, डेसिमल पॉइंट को हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन हम करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के लिए। Firstly, we will see addition and subtraction. For these operations, the notations should have the same exponent. बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेम एक्सपोनेंट होना चाहिए यहाँ पे। फिर अगर सेम एक्सपोनेंट नहीं होगा तो आप एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। सो ये सेम एक्सपोनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट द डिजिट टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आराम से समझ में आएगा। 2.5 into 10 to the power -3, this is one scientific notation, SN. 3.045 into 10 to the power -3, this is also a scientific notation. एक्सपोनेंट जो टर्म है हमारा 10 to the power -3 ही है। No problem, just keep it as it is and simply add these two, 2.35 plus 3.045. अगर आप उसको ऐड करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 5.395 इंटू 10 टू द पावर -3। एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है, कोई बात ही नहीं है इसमें, हमने फटाफट इसको ऐड कर दिया है क्योंकि हमारा एक्सपोनेंट जो है सेम है। सिमिलरली आप माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट सेम है, देखिए 10 टू द पावर 5 है, तो आप 7.52 से अगर 3.75 माइनस कर दे तो आपको 3.77 मिलेगा। एंड अगेन इट इज इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बहुत इजी। हमने तो बहुत आराम से ये कर दिया क्योंकि हमारा एक्सपोनेंट जो है, हमारा एक्सपोनेंट भैया एकदम सेम है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अगर एक्सपोनेंट सेम नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और क्या करेंगे, हमने ऑब्वियसली सीख लिया है कि हमको डेसिमल शिफ्ट कर सकते हैं, तो डेसिमल को शिफ्ट करके हम अपना एक्सपोनेंट भी बदल सकते हैं। ऐसे केसेस में जहां पे आपके एक्सपोनेंशियल जो टर्म्स है वो अलग है, उसमें आपको इस नंबर का जो नॉन एक्सपोनेंशियल पार्ट है उसका डेसिमल एडजस्ट करके आपको एक्सपोनेंट को पहले सेम बनाना है। तो हम इसको करते हैं। सो 5 से हमें 4 में लेके जाना है, इसको हम 10 की पावर 4 करेंगे, मतलब 5 -1। और -1 कब आता है, जब हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं राइट में। इफ यू डू नॉट रिमेंबर, सिंपली कि हमको क्या करना है, एक स्पेस हमको कम करना है, माइनस करना है, तो नीचे भी ऊपर भी 10 10 बनाते हैं, तो हमको क्या चाहिए, 10 टू द पावर -1 चाहिए, राइट। तो हम ये ऑपरेशन करेंगे कि हम डेसिमल को राइट की तरफ लेके जाएंगे, इसलिए हमारा जो है ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। सो 4.02 इंटू 10 टू द पावर 5 will be equal to 440.2 into 10 to the power -1 into 10 to the power 5। तो ऐसे ऑपरेशंस में आपका बेस सेम है तो आप 5 -1 करके ये हो जाएगा हमारा 40.2 into 10 to the power 4। So this is basically 40.2 into 10 to the power 4 plus 1.275 into 10 to the power 4। अब हमारे एक्सपोनेंट भैया हो गए सेम, तो बिंदास ऐड कीजिए।
तो अगर आप ऐड करेंगे इसको, आपका आएगा 41.475, 40.2 प्लस 1, 41.475 into 10 to the power 4. सो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेटेड कि आप इस 10 टू द पावर 4 को 10 टू द पावर 5 में करके देख सकते हैं और इसके साथ इसको ऐड करेंगे, सेम ही आंसर मिलेगा, सिर्फ डेसिमल आपका चेंज होगा। तो अगर आपको 10 टू द पावर 5 करना है तो आपको इसको लेफ्ट में लेके जाना होगा। सो 4.1475 इंटू 10 टू द पावर 5। So you can try to do it by yourself. आंसर आपका सेम ही है। अगर आप 41.475 को इंटू 10 टू द पावर 4 करेंगे, जो आंसर आपको मिलेगा, 4.1475 को आप 10 टू द पावर 5 करेंगे तो वो आपको सेम ही आंसर मिलेगा। बट यहाँ पे सीखने का क्या है कि हमको कैसे एक्सपोनेंट को एडजस्ट करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केसेस में। तो ये एक होमवर्क आप कर सकते हो, खुद आप ट्राई कर सकते हो आंसर्स के लिए, एंड यू कैन ऑब्वियसली कमेंट योर आंसर्स। सो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैसे हमको एक्सपोनेंट को सेम रखना है, कैसे हम एक्सपोनेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। So we have learned about addition and subtraction. So now we will see multiplication and division. These operations follow the same rules as exponential numbers. कि जो exponential numbers के जो rules होते हैं, ये आपको आशीष सर बेटर बता पाएंगे, जो कि हमारे मैथ्स टीचर है। सो लेट अस सी एन एग्जांपल अगेन। ये दो नंबर्स है, साइंटिफिक नोटेशंस है, एक्सपोनेंशियल इनका डिफरेंट है, लेकिन सिंस इनका बेस सेम है, 10 टू द पावर समथिंग है, तो इसको सिंपली हम ऐड कर देंगे। 10 into a 10 to the power a into 10 to the power b will be equal to 10 to the power a plus b. तो हमने यहाँ पे a plus b कर दिया, 4 plus 5 9 हो गया। इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.05 और 3.5 को, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। सिमिलरली यहाँ पे तो एक्सपोनेंशियल जो है वो सेम है, लेकिन वो सेम नहीं रहेगा। तो दिस इज द केस ऑफ 10 टू द पावर माइनस ए इंटू 10 टू द पावर माइनस ए। ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस 2a, minus a plus minus a is minus 2a, and you can multiply 5.35 into 3 and you will get this answer. Here I have expressed the answer in 10 to the power minus 5. होना चाहिए था लेकिन 10 to the power minus 6 में minus 3 plus minus 3 minus 6 होना चाहिए था, लेकिन मैंने minus 5 किया है। कैसे किया है, क्यों किया है, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने सिंपली डेसिमल को हमने शिफ्ट कर दिया है, -6 से -5 हुआ है, +1 किया है मैंने, इसलिए 16.05 होना चाहिए था आंसर, मैंने 1.605 लिखा है, इसलिए 10 टू द पावर -5 है। तो ये आप क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना आप यूज टू हो जाएंगे, आपकी आदत हो जाएगी कि हम लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव है, राइट में शिफ्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव है। बहुत आपको इजीली वो अंदर से ही आपको आएगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एंड वी हैव अ डिविजन एग्जांपल आल्सो। सो बेसिकली 10 टू द पावर a डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर b will be 10 to the power a minus b. So यहाँ पे -5 है, माइनस ऑफ -2 होगा, -5 प्लस 2 हो जाएगा, जो कि है -3। तो एक्सपोनेंशियल देखिए मैंने -3 कर दिया 10 टू द पावर -3, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा यहाँ पे 3 इंटू 10 टू द पावर -3 इज योर आंसर। सो हमने साइंटिफिक नोटेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा, कैसे डेसिमल को शिफ्ट करते हैं उसके बारे में देखा, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन के बारे में भी हमने देख लिया। And now it is time for our main topic, which is significant figures. बहुत ही important है. So let us see. Significant figures refer to the digits in a number which is used to express the precision of the measurement or calculation. ये नंबर के जो डिजिट्स है वही है सिग्निफिकेंट फिगर, जिसको हम यूज करके हमारा प्रेसिशन
हम उसको दिखाते हैं। प्रेसिशन हम अब जानते हैं कि प्रेसिशन क्या होता है, कि एक दूसरे के जितना क्लोज होगा हमारे वैल्यूज, मेजरमेंट के वैल्यूज, एक्सपेरिमेंट के वैल्यूज जितने क्लोज होंगे एक दूसरे के साथ, उतना हमारा प्रेसाइज होगा। मतलब उस नंबर के सिग्निफिकेंट डिजिट्स एक दूसरे के जितना क्लोज होंगे, उतना ही हमारा जो आंसर है वो प्रेसाइज होगा। कुछ भी नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर बेसिकली द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर। एक नंबर 1 2 3 4, ये जो 1 2 3 4 है, ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कंटेन अ सर्टेन नंबर पार्ट एंड अ अनसर्टेन पार्ट। सो जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है, उसमें एक सर्टेन पार्ट है और एक अनसर्टेन पार्ट है। मतलब 4.2, 4.5, 4.7, ये हम 3 ऑब्जर्वेशंस किए हैं। तो यहाँ पे हमारा सर्टेन नंबर है 4, और ये जो अनसर्टेन पार्ट है डेसिमल के बाद आ रहा है, वो है 2, 0.2, 0.5 एंड 0.7। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये एक सर्टेन नंबर हो सकता है, उसके साथ एक अनसर्टेन नंबर होता है। या फिर अगर आप डेसिमल फ्री कोई नंबर ले कि 25, 241, 243 एंड 240, तो ये जो फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे, ये 2 और 4 ही है, 24 ही है। मतलब 240 के रेंज में ही आपका आंसर होना चाहिए। एक बार आपको 240 मिला है, 241 मिला है, 243, शायद आंसर है 244, लेकिन आपको ये पता है कि 240 के रेंज में ही है, तो एटलीस्ट ये 240 के बारे में आप सर्टेन हो। लेकिन ये जो लास्ट डिजिट है, इसके बारे में आप अनसर्टेन हो। More the number of significant figures in a measurement, more accurate or certain it is. An important point, जितने ज्यादा significant figures होंगे हमारे आंसर में, उतना accurate या फिर certain होगा हमारा आंसर। मतलब आप एक आंसर को जितना अच्छे से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, उतना अच्छा हमारा आंसर होगा। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे आंसर की 1 है, किसने लिखा है कि आंसर 1.0 है। इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1 ही आएगा, लेकिन इसने बताया कि नहीं 1.02 है। फिर किसी दूसरे बंदे ने जो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता है, जिसको साइंस से बहुत प्यार है, उसने तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है, उसने कहा है कि नहीं 0.008 है। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो फिर 1.02 ही आएगा, सॉरी 1.01 आएगा। सो एनीवे दिस इज वेरी क्लोज। तो हम क्या कहेंगे कि इसका आंसर भाई बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब इसके आंसर को देखकर हमें समझ में आ रहा है कि 1 ही होगा, कि 1 ही होगा हमारा एक्चुअल आंसर। लेकिन मेरे आंसर को देख के आपको लगता है कि 1 हो सकता है, या फिर 2 भी तो हो सकता है कि 1 आया तो नेक्स्ट टाइम अगर हमको 2 आ गया तो क्या होगा। लेकिन इस बंदे ने दिखा दिया कि 1 के बाद 008 है, मतलब यहां तक वो श्योर है कि भाई यहाँ 1 ही होगा आंसर। तो जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आपके नंबर में, आपके आंसर में, उतना ज्यादा वो एक्यूरेट होगा। तो इसीलिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को स्टडी करते हैं। आपके क्वेश्चन में आप कुछ आंसर सॉल्व करेंगे, उसमें बहुत सारे आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे, शायद 2.025, 27। आपको एग्जाम में या फिर आपके क्वेश्चन में लिखा होगा कि आप इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्सप्रेस कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप इसको राउंड ऑफ करेंगे। अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये 2.0 ही आना चाहिए आपका। अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपका 2.0 ही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, जो आप एमसीक्यू के ऑप्शंस में से टिक करके आएंगे। तो इसलिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। रूल्स टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, की एक नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। सारे नंबर सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, कौन से नंबर सिग्निफिकेंट है, कौन से इनसिग्निफिकेंट है, वो आपको जानना जरूरी है। तो पहला जो पॉइंट है विच इज वर्थ रिमेम्बरिंग, द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ नंबर बिगिन विद द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ये एक शायद नंबर है आपका 0001, 234, तो यहां से शुरू होगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना। ये जो पहले के 3 जीरोस है वो फुद्दू है, इसका कोई यूज नहीं है। तो जो नॉन जीरो डिजिट्स रहते हैं, या फिर आप 0.00123, तो फिर से यहाँ से 1 से हम काउंट करना शुरू करेंगे। ये जो पहले के जीरोस है, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते। तो रूल्स देख लेते हैं।
ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 कुछ भी हो जाए, नॉन जीरो डिजिट है तो वो सिग्निफिकेंट ही है, हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जीरोस प्रेसीडिंग, प्रेसीडिंग मतलब जीरोस जो पहले आता है, जो पहले आता है उसको हम प्रेसीड कहते हैं, जो बाद में आता है उसको हम सक्सीड कहते हैं। जीरोस प्रेसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब पहला जो हमारा नॉन जीरो डिजिट है उसके पहले जो जीरोस आएंगे, जितने भी जीरोस, लाखों जीरोस, करोड़ों जीरोस भी आ गए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जो पहला हमारा नॉन जीरो डिजिट है उसके पहले जो भी जितने सारे जीरोस हो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब 1 0 1। तो ये वाला जीरो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्यों? क्योंकि ये जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है ये जीरो, तो इसलिए ये जीरो सिग्निफिकेंट। जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट, एक नॉन जीरो डिजिट है 1, उसके राइट में जो जीरोस है आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ अ डेसिमल पॉइंट। तो यहां भी एक नॉन डिजिट जीरो है जो है हमारा 1, यहां भी हमारा सेम नॉन नॉन जीरो डिजिट है जो कि है 1। इसके बाद में भी दो जीरोस है, इसके बाद में भी दो जीरोस है, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन ये जो दो जीरोस है ये सिग्निफिकेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट जो है, जब जीरोस डेसिमल पॉइंट के बाद आते हैं, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद एक डेसिमल पॉइंट होता है, उसके बाद अगर जीरोस आए तो वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये पहले जो 3 रूल्स थे काफी इजी थे, आपको याद रखने में भी बहुत इजी है, लेकिन ये फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेसिमल पॉइंट जरूर होना चाहिए जीरोस के पहले, वरना वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पे ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि इससे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट है ही नहीं, ये नॉन डिजिट जीरो के बाद स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन नॉन जीरो डिजिट के बाद एक डेसिमल, उसके बाद अगर जीरोस हो तो वो सिग्निफिकेंट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और एग्जैक्ट नंबर्स हैव इन्फिनिट सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका क्या मतलब हुआ कि एग्जैक्ट नंबर, आपका कौन सा लकी नंबर है आई डोंट नो, मुझे खुद का लकी नंबर भी नहीं पता, सो आई विल जस्ट टेक 2, इट इज द फर्स्ट इवन प्राइम नंबर, सो आई हैव टेकन 2। ये एक बहुत अच्छा नंबर है 2। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2.0, 2.0 मतलब क्या है? 2 ही है। और यहाँ पे 2 भी सिग्निफिकेंट है, 0 भी सिग्निफिकेंट है, क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि वो डेसिमल पॉइंट के बाद है। या फिर हमने लिखा 2.00, ये भी 2 ही है। हमने लिखा 2.000, ये भी 2 है। अब आप जितने जीरोस आपका मन हो, जितना आपको सर्कल बनाने हो, आप बनाते जाइए, 2 ही आएगा, वो 2 को ही मीन करेगा। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स तो यहाँ पे काउंट हो रहे हैं, ये 2 एक सिग्निफिकेंट है, ये 0 सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट करके आप इनफाइनाइट अगर जीरोस बिठाते चले जाएंगे फिर भी आंसर हमारा 2 ही है। लेकिन ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसलिए एग्जैक्ट कोई नंबर है तो उसके इन्फिनिट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। क्योंकि डेसिमल के बाद तो आप आराम से जितने आपको जीरोस पसंद है आप तो चले ही जा सकते हो आप 0 0 करके, इसलिए इन्फिनिट सिग्निफिकेंट होते हैं एग्जैक्ट नंबर्स के। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आप याद रख सकते हो। I just realized कि I had covered this portion. So after 1, there is 0 0. These zeros are not significant because there is no decimal point, and these zeros are significant because there is a decimal point. अगर आप फोर्थ वाले पॉइंट को इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा। I just now realized कि this part was covered with my head. So I hope you can see it clearly, and I hope you have understood this. Now we know about significant figures, so let us see and solve some questions. कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इन सारे क्वेश्चंस में, हम देखते हैं।
यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1 2 3 4 है। नॉन जीरो डिजिट से हमने शुरू किया है, बीच में जीरोस है, सिग्निफिकेंट है 4 है। यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6 डेसिमल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। डेसिमल का जो इंपॉर्टेंस है सिग्निफिकेंट फिगर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट है। नाउ वी हैव 0.0020001। मैंने ये 2001 को यूज करके सारे वेरिएशंस बनाए हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट जो हमारा नॉन जीरो डिजिट है उससे हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है, मतलब ये सारे जो है सारे इनसिग्निफिकेंट है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 200100। आपको क्या डेसिमल पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है? यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ये जो सारे जीरोस है ये इनसिग्निफिकेंट है, इसलिए हमारे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स फिर से हो गए 4। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट बहुत ज्यादा मायने रखता है। 9768 बहुत मजेदार नंबर, कोई जीरो ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ वी सी अ साइंटिफिक नोटेशन। ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कंसिडर करते, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो हमको इसका ही सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। डेसिमल पॉइंट भी है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 1 0 0 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है इसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप 1 इंटू 10⁻³ को अगर आप लिखेंगे तो इट विल बी 1000। इफ यू बेसिकली सॉल्व दिस, तब आपका सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा। तो जैसे आपने अपने आंसर को आपने डिनोट किया है वैसे ही आपका सिग्निफिकेंट फिगर भी बदल जाता है। बट सिंस यहाँ पे हमने ऐसे एक्सप्रेस किया है इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 3। लेकिन अगर आप 1000 लिखे तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा हमारा 1। So you have to see your answer and then you have to determine the significant figure. कि इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करें वैसे एक्सप्रेस करें, आप ऐसा वैसा करने के चक्कर में आपका सिग्निफिकेंट फिगर भी इधर उधर हो जाएगा। So please check your answers as you get them. Do not try to alter it. Do not try to change it. So now we will just quickly move on to addition, subtraction and multiplication, division of significant figure. Numbers are aligned according to their decimal points and added and subtracted. Decimals को हम जैसे add subtraction करते हैं वैसे ही करेंगे. The result should be expressed by rounding of the number to the lowest decimal place among the original number that was added or subtracted. जिसका सबसे कम डेसिमल प्लेस होगा आंसर को हम उसी वे में एक्सप्रेस करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। डेसिमल को अरेंज कीजिए, ऐड कीजिए, दीज आर वेरी इजी। ये आप बहुत बचपन में आप करके आए हैं, आई होप यू ऑल रिमेम्बर। तो जहाँ पे नंबर्स नहीं है वहां पे जीरो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है लास्ट के जीरोस काउंट नहीं होते एडिशन के टाइम पे डेसिमल के केस में, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स जरूर काउंट होते हैं। इन केस में हमने यहाँ पे ऐड किया तो सबसे लेस डेसिमल पॉइंट इसका था, एक ही डेसिमल पॉइंट था, इसलिए हम आंसर को भी 1 डेसिमल पॉइंट में हमने राउंड ऑफ करके लिखा है। What is rounding off? I will also discuss. Similarly, you can check these subtractions and these answers also. खुद सॉल्व करके खुद एक्सप्रेस कीजिए। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है इसलिए 2 लिखा है मैंने, 1 डेसिमल प्लेस है इसलिए 1 डेसिमल प्लेस में मैंने एक्सप्रेस किया है, राउंड ऑफ किया है यहाँ पे फिर से मैंने, which I will explain. तो यू प्लीज चेक दीज कैलकुलेशंस, आप खुद ऐड कीजिए, खुद सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए कि आंसर आपके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। Now for multiplication and division, the numbers are multiplied or divided as per mathematical rules. आशीष सर का पोर्शन है तो वो ही बताएंगे आपको, जो रूल्स है डेसिमल के आप वैसे ही कीजिए। Result has to be reported with the same number of significant figures. अब significant figures एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, कि significant figure सबसे जिसका कम होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जिसका रहेगा, आप उसके सिग्निफिकेंट फिगर को यूज करके आपके आंसर को एक्सप्रेस करोगे। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिए जैसे करना होता है। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस के बाद था, यहाँ पे भी 2, इसलिए 4 डेसिमल प्लेस के पहले आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट।
लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कम किसके है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 4 है, तो हमारे आंसर में भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो फिर से आप राउंड ऑफ करके अपने आंसर को एक्सप्रेस कीजिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में याद रखिएगा डेसिमल पॉइंट का खेल है कि जिसका डेसिमल कम होगा आप उसके वे में आंसर एक्सप्रेस करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन डिविजन में है सिग्निफिकेंट फिगर्स का खेल। तो ये सब नॉर्मल रूल्स है। आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम के क्वेश्चन में जैसे आपको पूछा जाएगा, आपको वहां पे लिखा होगा कि इतने डेसिमल पॉइंट में एक्सप्रेस कीजिए या फिर इतने सिग्निफिकेंट फिगर में एक्सप्रेस कीजिए, आप उसी को फॉलो कीजिए। दिस इज द जनरल टेक्स्ट बुक रूल, बट इन योर एग्जाम वॉट एवर यू आर गिवन इन द क्वेश्चन, प्लीज फॉलो दैट। सिमिलरली आप डिविजन कीजिए, तो यहाँ पे है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, आवर आंसर विल ऑल्सो बी इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। So this was all about addition, subtraction, multiplication and division using significant figures. और एक बार राउंडिंग ऑफ के बारे में देख लेते हैं। आई होप यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, बट स्टिल आई विल डिस्कस दिस वेरी क्विकली। राउंडिंग ऑफ करने के लिए हमको क्या ध्यान में रखना चाहिए? आइडेंटिफाई द लास्ट डिजिट दैट हैज टू बी केप्ट इन द फाइनल आंसर। जो लास्ट डिजिट है, जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर या फिर डेसिमल पॉइंट के बाद जो लास्ट डिजिट है, उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। विद द डिजिट टू इट्स राइट, उसके राइट साइड का डिजिट अगर ग्रेटर देन 5 है, उस नंबर को आप +1 कर दीजिए, और अगर उसके राइट वाला डिजिट लेस देन 5 है तो उसको वैसे ही रखिए। तो 2.52 को आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 2.5। तो हमें इतना तक राउंड ऑफ करना था, दिस इज लेस देन 5 सो इट इज 2.5। 2.58 विल बी 2.6, इतना तक राउंड ऑफ करना था, ये 5 से ज्यादा है, सो वी आर राउंडिंग इट ऑफ टू 2.6। And this last point is very important. If the digit to its right is equal to 5, 5 से कम होगा तो हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, 5 से ज्यादा होगा तो हम +1 कर देंगे, लेकिन अगर 5 हुआ तो क्या करेंगे? Preceding number remains unchanged if it is an even number and increased by 1 if it is an odd number. 2.25 और है 2.55, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो होगा हमारा 2.2। इवन नंबर है, 5 है, तो हम इसको राउंड एक्स्ट्रा +1 नहीं करेंगे, जो जैसा है वैसे ही लिख देंगे, और ये हो जाएगा हमारा 2.6, क्योंकि एक ऑड नंबर है, बाजू में है 5, इसलिए ये +1 होके 2.6 हो जाएगा। तो ये एक ध्यान में रखने वाली चीज है, क्योंकि अगर 5 से कम हुआ तो चेंज नहीं करेंगे, 5 से ज्यादा हुआ तो +1 करेंगे, लेकिन अगर 5 हुआ तो इवन के लिए अनचेंज रहेगा, ऑड के लिए +1 होगा। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट राउंडिंग ऑफ रूल्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप डेसिमल को एडजस्ट करेंगे आपके आंसर में, सिग्निफिकेंट फिगर को एडजस्ट करेंगे, तो ये राउंडिंग ऑफ आपको बहुत ध्यान से करना होगा कि आपको जितना तक आपके आंसर को एक्सप्रेस करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में, आप उसको देखिए एंड यू एडजस्ट योर सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड योर राउंडिंग ऑफ वेरी केयरफुली, बहुत केयरफुली राउंड ऑफ कीजिए। So again, for some more examples, 4.523, इसको आप एक्सप्रेस कीजिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो इसके डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, आप वैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। 42610.78, इसको आप एक्सप्रेस कीजिए 3 डेसिमल प्लेसेस। 1245.002, and you express this in 3 significant figures. So this is your homework, you can try it. इस नंबर को आप 2 डेसिमल प्लेस में एक्सप्रेस कीजिए कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए, इसको आप 3 में कीजिए कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए, और इसको आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप एक्सप्रेस कीजिए कि आंसर को ऐसे देना है कि उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। तो यहाँ पे आपको राउंड ऑफ करना है इन सब सारे क्वेश्चन में, और ये राउंड ऑफ आप कैसे करेंगे, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आंसर्स यू आर गेटिंग। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट सिंपल टॉपिक
to end today's discussion is dimensional analysis. It refers to the process of converting unit from one system to another. Unit conversion है, कुछ इसमें नहीं है, सिर्फ एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है. Conversion is same for physical quantity like mass, length, volume, time. टाइम को आप वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली टाइम को आपको टाइम में ही कन्वर्ट करना है. जैसे आवर्स को आप सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, सेकंड को मिनट में कीजिए. मास को आप मास के दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, केजी को ग्राम में, ग्राम को मिलीग्राम में, लाइक दैट. देयर इज अ कन्वर्जन फैक्टर व्हिच एनेबल्स द कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट टू अनदर. एक कन्वर्जन फैक्टर रहता है. लेट अस सी द कन्वर्जन फैक्टर्स. दीज आर द इंपॉर्टेंट कन्वर्जन factors. 1 kg 1000 gram, 1 gram 1000 milligram, 1 inch 2.54 centimeter. This is a uncommon one. 1 meter 1000 100 centimeter, 1 meter 1000 millimeter. सारे कॉमन बहुत है. 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ये थोड़ा अनकॉमन है. This I had mentioned in my previous video of the first lesson. 1 liter is equal to 1 decimeter cube. This also I had mentioned, but it's uncommon. 1 hour 60 minutes, 1 minute 60 seconds. तो ये सारे कन्वर्जन फैक्टर है. तो आपको अगर 2 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना है, 2 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको यूज करेंगे. तो 1 hour will be 60 into 60 seconds basically. So like this, using the conversion factors, you can easily convert. So this is also an important and interesting conversion factor relation जो आप खुद निकाल सकते हो. 1 meter we know is 100 centimeter, मतलब 10 to the power 2 centimeter. तो 1 meter cube मतलब 1 meter into 1 meter into 1 meter. 10 to the power 2 centimeter into 10 to the power 2 centimeter into 10 to the power 2 centimeter, which will be 2 plus 2 plus 2, 10 to the power 6 centimeter cube. सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा, हमको यूनिट को भी मल्टीप्लाई करना है. सो दिस इज हाउ 1 meter cube is equal to 10 to the power 6 centimeter cube. So now we can do the conversion of 50 centimeter to 1 inch. हमने क्या देखा? 1 inch is equal to 2.54 सेंटीमीटर. ये जो रिलेशन है हम इसको यूज कर रहे हैं. So 1 centimeter will be 1.2.54 inch. I applied simple unitary method. 2.54 को मैंने बस डिवाइड कर दिया है. तो 1 सेंटीमीटर अगर इतना है तो 50 सेंटीमीटर विल बी 50 by 2.54 इंच. इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 19.685 आई थिंक. प्लीज डू क्रॉस चेक माई आंसर्स. डू नॉट simply blindly follow me. My maths is very poor. I'm not Ashish sir. So please check these answers. So हमें इंच 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर पता था, इसलिए हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करके उसका ऑपोजिट भी निकाल सकते हैं. एंड 450 लीटर टू मीटर क्यूब. दिस इज ऑल्सो अ वेरी फन वन. थोड़ा डिफरेंट है ये. The different ones I am solving, easy ones तो आप solve कर ही सकते हो. So I am showing some different examples. 1 liter is 1000 centimeter cube, right? And 1 meter cube is 10 to the power 6 centimeter cube. तो हमारा यहाँ पे 1 centimeter cube should be 10 to the power minus 6 meter cube. I hope this is okay. So if 1 centimeter is 10 to the power minus 6 meter cube, then 1000 centimeter cube will be 10 to the power minus 6 into 1000. 1000 को I am writing like 10 to the power 3. So it will be 10 to the power minus 3 meter cube.
वो 1 लीटर हो गया हमारा 10⁻³ 1 लीटर का इतना है तो 450 का होगा, 450 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। सो आई होप दिस इज ओके। सिंपली हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप इसके डेसिमल को आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे डेसिमल है, इसको आप लेफ्ट में लेके जाओगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे एडिशन होगा, पॉजिटिव आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप उसको ऑब्वियसली एडजस्ट कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट डिमेंशनल एनालिसिस इज। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ यूनिट कन्वर्जन को हम कहते हैं डिमेंशनल एनालिसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए कि आप ये कैलकुलेशंस आप एक यूनिट में करेंगे लेकिन आपके आंसर को आपको दूसरे कुछ यूनिट में आपको एक्सप्रेस करना है, इसलिए आपको ये जो सारे रिलेशंस है ये पता होना बहुत जरूरी है। बिकॉज इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स आल्सो आपको दिया जाएगा कि probably you have calculated your answer in hour but it is written that express your answer in seconds। और जो एमसीक्यू के 4 ऑप्शंस है उसमें सिर्फ सेकंड्स में ही 4 ऑप्शंस है, आवर से कैसे सेकंड में कन्वर्ट करते हैं ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। सो डिमेंशनल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So these questions I have solved. If you have any doubts regarding this, you can let me know in the comments. And these are some questions for you as homework. Very easy they are, don't be afraid. मैं सारा काम क्यों करूँ, आप भी कुछ कीजिए, आप भी मेहनत कीजिए, मैथ्स कीजिए। So this is your homework. So this was all for today's lesson, lesson number 2 on significant figures and scientific notation along with dimensional analysis and obviously uncertainty in measurement. Thank you so much for being a part of this lesson and for following our chapter series. I would like to request you all to join our World of Mentors Galaxy where you will get regular classes and shorts and reels जिसमें आपको बहुत fun और engaging content मिलेगा, बहुत useful hacks मिलेंगे, and obviously we will have problem solving and doubt clearing sessions. Please subscribe to our YouTube channel and follow our Instagram page. Thank you for being a part of Mentors Galaxy. If you haven't subscribed to our channel, please subscribe to our YouTube channel and also follow our Instagram page. Stay tuned for more updates. Thank you so much.